Dimension doesn't change. So answer of that question is, what remains same? Dimension remains same. Things might change, everything might change, but dimension will remain same. So when I say dimension remains same, फिर तो अगर डायमेंशनली इसको मैं इस तरह से ना लिखूं, जो कि अगेन गलत होगा, जैसे आपने कहा था कि फिजिक्स के जो इक्वेशंस हैं, अगर हम डायमेंशनली देखने लगे तो बहुत भयानक क्वेश्चन आ जाएंगे। ये एक्चुअली इक्वेशन सही है, लेकिन डायमेंशनली जो इक्वेशन मैं लिखने जा रहा हूं ये भी उतना ही सही है जितना वो है। बट बिफोर वी बिगिन, विजिट कीजिए iitwalebaba.com पे। यहाँ से आप फिजिक्स और मैथ्स के हैंड रिटन नोट परचेज कर सकते हैं अपने बोर्ड, जेई, बिटसेट या फिर किसी भी इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही कम प्राइजेस में। डाउनलोड कीजिए IIT वाले बाबा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और व्हाट्सएप ऑन अस 7974122749 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। So second application, we can convert from one unit to another. If I have a unit, say meter, and I say that meter has to be converted into centimeter, so what will remain same? Unit? Pakka? Yes. 1 meter is how much? How many centimeter? 100 centimeter. आप एक बार 1 करो, एक बार 100, क्वांटिटी तो बदल गई। अभी क्वांटिटी बोला था, अब मैग्नीट्यूड। सो एक मीटर का 100 हो गया, अब कह रहे क्वांटिटी रिमेन सेम। नो, क्वांटिटी तो चेंज हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू बदल गई। मैग्नीट्यूड इज सेम एज द क्वांटिटी, दोनों बदल गए। सेम क्या रहा, क्या चीज नहीं बदली? सेंटीमीटर। ओके फाइन। व्हाट अबाउट द यूनिट ऑफ मीटर? L, dimension is L. What about the dimension of centimeter? L. So that means Dimension remains the unit seems to be changing, dimension doesn't change. So answer of that question is, what remains same? Dimension remains same. Things might change, everything might change, but dimension will remain same. So when I say dimension remains same, okay, then don't you feel that I can always write that n1 unit in one particular system is equal to n2 unit in another system with the same dimension here and here. I don't know which dimension. For example, अभी जो example मैंने पूछा ले, if happens to be suppose meter into centimeter, so I will write L 100. You all know that 1 meter is how much centimeter? 100 centimeter. But what about force and dyne? Maybe force has got a dimension of MLT minus 2. Dyne, which happens to be the CGS unit of force, will have a dimension of, so dimension तो बदलेगा नहीं. But I don't know कि यहां से यहां आने में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी बदल गई होगी. I don't know. लेकिन मैं चाहूं तो आराम से निकाल सकता हूं, तो बहुत इजी हो गया. That means I can write N2 is equal to N1 M1 upon M2 L1 by L2 T1 by T2 power C, and this power B and power A. Got it? So that arrive या हो गया, समझ आ गया? N1 M1 L1 T1 A B C in general, जरूरी थोड़ी कि फोर्स होगा. N2 M1 L1 M2 L2 T2 A B C. 2 because from meter to centimeter, so obviously we have to change that also. But now if I want to find N2 in terms of N1, so it becomes M1 upon M2 power A, L1 upon L2 power B, and T1 upon T2 power C. Using this particular formula, you can convert from one system to another easily. Can you do it for me? Can you convert 25 joule of energy into its CGS unit called erg? All of you do it. Convert 25 joule of energy into its CGS unit, which is called EARG, erg.
there is any question, then please let me know. आ गया? Got it? Tell me the answer. 25 into 10 to the power 5. ये तो बंटवारा हो गया बेटा क्लास में, कुछ 5 कुछ 7 7। आप चेक करो, आई थिंक समवेयर यू वेंट रॉन्ग। 7 वालों का सही है, बट आई वंडर आपसे गलती कहाँ हो सकती है इसमें। ओके, ये क्या किया, इतना सारा जीरो कैसे लगा दिया? इसमें कितने, 2 या 3 है? 3 कैसे हो सकते हैं? 3 कैसे हो सकते हैं? मीटर को सेंटीमीटर में कर रही हो ना, 3 कैसे होंगे? सोचो, 2 ही होंगे ना। वही गलती है, क्योंकि यहाँ एक जीरो का जो तो आपने गड़बड़ी किया है वो आगे चल के वो 10 पावर 5 हो गया, बाकी सही है। आ गया? नहीं, देखो मुझे ध्यान से देखो, प्रॉब्लम जहां आपको आ रही है, ये प्रॉब्लम नॉर्मली सभी को आती है। फॉर्मूला तो ठीक है, फॉर्मूला लिखने का आधा नंबर तो ले लो पहले, टीचर से बाद में बोल के भी ले सकते हो कि सर हमने फॉर्मूला तो सही लिखा है, बाकी सारा गलत है तो क्या। तो हाफ मार्क्स एज पर द सीबीएसई बोर्ड, ठीक है, फाइन। बट प्रॉब्लम यहां अक्सर आ जाती है बच्चों को कि M1 और M2 L1 L2 में T1 T2 में रखें क्या, कहाँ क्या रखें। और कहीं कहीं तो क्वेश्चन ऐसा घुमा के दे देते हैं कि उसमें प्रॉब्लम आना पक्का है अगर आपने इसे समझा नहीं है। पहले आप ये डिसाइड करो कि N2 और N1 में से नोन कौन सा है और अननोन कौन सा है। N2 अननोन है तो क्वेश्चन मार्क लगा दो इसके साथ, और N1 नोन है तो वैल्यू बताओ कितनी है? जूल। तो नॉन जूल हो गया, ठीक है। इसका मतलब जूल, जूल को एक्सप्रेस करो m l स्क्वायर t माइनस 2 a, ये मैंने जूल को एक्सप्रेस किया है। a क्या हो गया बोलो? 1 b 2 c abc आ गया। एंड सिंस 1 नोन है 2 अननोन है, इसलिए फार्मूले में जहां जहां 1 1 1 है वहां तुम MKS लिखोगे, क्योंकि जो नोन है वो MKS है और जो अननोन है वो CGS पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका मतलब मैं जहां 1 1 M1 की जगह क्या लिखूंगा? MKS में मास क्या होता है? kg लिखूंगा। बच्चों से गलती क्या हो जाती है, जिनको ऐसे समझ को गलती से यहां ग्राम और यहां किलोग्राम लिख देते हैं, बिल्कुल उल्टा रिजल्ट आएगा, 10⁻⁷ आएगा, और गलत होगा नेचुरली। तो 1 नोन है 2 अननोन है, तो सबसे पहले ये पता कर लिया करो कि नोन सेगमेंट कौन सा है, अननोन कौन सा है, और फिर वैल्यूज डालो। तो ऑब्वियसली नाउ इट्स इजी, N2 निकालना है, N1 25, यहां डाला kg, यहां ग्राम, ठीक है। पावर 1 यहां डाला मीटर, यहां सेंटीमीटर, पावर 2 यहां सेकेंड, यहां सेकेंड, पावर। इसके बाद आई डोंट थिंक दैट एनी टॉम डिक एंड हैरी विल डू द मिस्टेक, क्योंकि या तो इसको कर दो इसमें या इसको कर दो इसमें, मर्जी तुम्हारी, आएगा सेम रिजल्ट। केजी को ग्राम में करोगे तो 1000 आएगा, ग्राम को केजी में करोगे तब भी 1000 ऊपर जाएगा, यही बात हुई, ठीक है। तो अगले स्टेप में 25,000 ग्राम अपॉन ग्राम 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर 2, 1 पावर -2, ठीक है।
centimeter, centimeter, gram, gram cancel. Power 2, 100 power 2 is how much? So this is 10 to the power 3, 10 to the power 4 into 1. What is this? 25 into 10 to the power 7 erg. In scientific form, if you write, decimal must be placed always from after one digit. 2.5 into 10 to the power 8 erg. Got it? So you can do such kind of problem when it is asked in the exam. Now, third application is when you have been given various physical quantities and you're not asked to check the correctness etc. because equation is not given. Correctness तो तब check करोगे ना जब equation दिया हो. हवा में बातें हो रही हैं कि there is a physical quantity x which depends on y, a, b, c. All these are physical quantities. और आपसे कहा गया derive a relation, मतलब इक्वेशन चेक नहीं करना है, इक्वेशन डिराइव करना है. यू नेवर नो कि x जो डिपेंड कर रहा है वो y, a और b, c के किसके पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है. So that is another application. Okay, so see how to do it. Let us do one question. Okay, should we do it? Let's do this. Yeah, you do simple because there is a loophole in this. इसको मैं अभी अलग से बताऊंगा इसमें loophole क्या है. You do a simple one. Okay. The rate of flow of liquid ब्रैकेट में लिख लो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड. दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो. वॉल्यूम फ्लोइंग, इतनी मदद आपको एग्जाम में भी मिलती होगी पेपर में. तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड ब्रैकेट क्लोज. इसका सिंबल लिख लो V, कैपिटल V. डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of pipe and the velocity of the liquid. Area of cross section को कैपिटल A से लिख लो सिंबल, and velocity को small v, and the velocity of the liquid small v. Derive a relation using dimensional method. Derive a relation using dimensional method. All of you do it. I'm sorry, I have given you this question. I have not explained how to do it. How many of you know it first? Raise your hands. Those who know how to do it. Some of you might not be knowing. Okay, majority. आपने नहीं किया लगता है. Okay, आपको भी नहीं आता? Okay. चलो, let's do this exercise. जिनको नहीं आता है वो इधर नहीं देखेंगे, ठीक है? इसका समसम खा लो आप. और जिनको आता है वो इधर नहीं देखेंगे, जिनको नहीं आता सिर्फ वही देखेंगे मुझे. So, इसका तरीका ये है बच्चों करने का. Let V is proportional to A power A and V power B. We first assume it. Where A and B are unknown constants. Means dimensions we don't know. If I equate the proportionality constant into equality, I get a constant. So it becomes like this.
इक्वेशन 1. ठीक है, यहां तक सिंपल है. नाउ लेट अस अज्यूम दिस इक्वेशन टू बी डायमेंशनली करेक्ट, एंड इफ इट इज डायमेंशनली करेक्ट देन डायमेंशन ऑफ LHS मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS. ओके, आपको भी सर डायमेंशनली करेक्ट क्यों मान रहे हो? तो निकाल रहा हूं, तो जो निकालूंगा वो तो डायमेंशनली करेक्ट होना ही चाहिए ना, तो इनकरेक्ट मान के थोड़ी चल सकते हैं. तो L क्यूब T माइनस 1 LHS, RHS डायमेंशन क्या होगा? K छोड़ दो, एरिया L स्क्वायर पावर A, velocity LT minus power B. If I collect L together, 2A plus B T power minus B. As I told you, dimensions of LHS must be equal to RHS. Do it. That means L cube T minus 1 must be equal to L power 2A plus B T power minus B. Now compare the power. 3 is equal to 2A plus B and minus 1 is equal to minus B. This means B is equal to 1. ठीक है, B is 1, and if I substitute the value of B1 here, then A is also 1. Since I got A and B which were unknown in the beginning, consequently I can go back and I can write the desired equation, that is V is equal to constant AV. ठीक है, so method we can use this method whenever it is given to derive any physical equation. Fine, but there could be a situation where you are actually terribly stuck into a dilemma that how to go about it, because maybe the physical quantities given, they are actually more than 3 in number. For example, look at this. The rate of flow is given as pi p r power 4 upon 8 eta L. Actually this is a formula. Okay, I can ask you question that prove that this formula is dimensionally correct. I can tell you आएगा सही, correct आएगा, correct है, मैंने लिखा ही correct. But I might ask you a question that derive this physical quantity, derive this physical equation. And when I ask you a question like derive a physical equation where volume flowing per second of a liquid depends upon pressure, depends upon radius, depends upon coefficient of viscosity and depends upon length, I have actually gone wrong dimensionally, because radius and length could be two physical quantities, but in terms of dimensions they are same. तो गलत हो गया, क्योंकि if I say that a quantity depends upon length, it depends upon length, it depends upon length, आप कहोगे क्या मजाक कर रहे हो, इतनी बार क्यों बोल रहे हो? तो डायमेंशनली मैंने वही बोला, radius has the same dimension as the length. फिर तो अगर डायमेंशनली इसको मैं इस तरह से न लिखूं, जो कि अगेन गलत होगा, जैसे आपने कहा था कि फिजिक्स के जो इक्वेशंस हैं अगर हम डायमेंशनली देखने लगे तब तो बहुत भयानक इक्वेशन आ जाएंगे. ये एक्चुअली इक्वेशन सही है, लेकिन डायमेंशनली जो इक्वेशन मैं लिखने जा रहा हूं ये भी उतना ही सही है जितना वो है. पाई 80 पाई लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, कांस्टेंट. क्यूब कर दो, देन पी आर क्यूब अपॉन 8 की जगह साइन थीटा कर दे. लेंथ खाई जाता हूं, आर क्यूब कर दिया. इसको चेक करना डायमेंशनली करेक्ट है.
ये तो बड़ी भयानक गलती है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये फॉर्मूला होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। एक्चुअली ये प्रूवन फॉर्मूला है। ये उस समय ये फॉर्मूला अप्लाई होता है जब कोई लिक्विड किसी पाइप से फ्लो करता है जिसका पाइप का डायमीटर का रेडियस मतलब क्रॉस सेक्शन आर होता है, लेंथ एल होती है। एंड सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन है। इसके साथ ऐसा भद्दा मजाक अलाउड नहीं है, बट हम सही है, डायमेंशनली हम सही है। तो पहली बात तो एक चीज ये सुन लो, समझ लो कि डायमेंशनल एनालिसिस हैज अ बिग लूप होल। ओके, एंड व्हाट इज दैट लूप होल? Exact form of any physical equation cannot be derived. Exact form, when I say, I mean here that whether the formula actually contains some numerical constants, trigonometrical constant, logarithmic constant, pi, okay, numerical value, etc., cannot be obtained. However, अब चूंकि क्वांटिटीज इस तरह से परेशान कर रहे हैं, तो हो सकता है इसमें हम दो क्वांटिटीज को साथ लेकर कर लें इसे। जैसे P और L के रेशियो को अगर मैं साथ ले लूं और इसको एक नाम दे दूं तो काम चल जाएगा। ठीक है, आगे फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा, किसी भी क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करो तो उसका एक नाम रख दिया जाता है रेट, और किसी भी क्वांटिटी को लेंथ से डिवाइड उसका नाम रख दिया जाता है ग्रेडियंट। ठीक है, मीनिंग भी है, गूगल कर लेना, तो आसान है, बट मीनिंग भी बड़ा सिंपल है। रेट का मतलब होता है एक्चुअली द वे इट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ग्रेडियंट का मतलब द वे इट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। तो अब लेंथ के रिस्पेक्ट में कोई चीज बदल रही है तो लेंथ के रेशियो में तो उसे देखोगे, इसलिए P बाई एल या किसी चीज, तो मैं इसको क्या कह सकता हूं? प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, कभी अगर मैं वेलोसिटी अपॉन लेंथ करूंगा तो क्या कहूंगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट। कभी मैं टेम्परेचर अपॉन लेंथ कहूंगा तो क्या कहूंगा? टेम्परेचर ग्रेडियंट। आसान है, ठीक है। नाउ यू कैन डिराइव इट। कैन यू डू इट नाउ? Derive this, all of you derive it. Derive a relation where volume depends upon, लिख लो, derive a physical equation where volume flowing per second, volume flowing per second depends upon pressure gradient. Derive a physical equation where volume flowing per second depends upon pressure gradient, radius of the tube and coefficient of viscosity of the liquid. Derive a physical equation where volume flowing per second of a liquid depends upon radius of the tube, pressure gradient and coefficient of viscosity of the liquid. Let's do it.